Hello students, welcome to our online lecture. I am Dr. Drupti Lavankar and today we are going to start our last chapter, chapter number 16, that is nothing but a green chemistry and nanochemistry. So first of all, ये जो chapter है green chemistry and nanochemistry in our syllabus, that means in Maharashtra State Board syllabus, ये इसी साल आया हुआ chapter है. ये newly एड सिलेबस अपने सिलेबस में न्यूली एडेड चैप्टर है तो इसी साल आया हुआ है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ग्रीन केमिस्ट्री. सो ये जो वर्ड है ग्रीन केमिस्ट्री, सो अभी आइडिया तो आ ही गई होगी आप लोगों को. दिस इज रिलेटेड विद द एनवायरनमेंट कि एनवायरनमेंट को हम लोग कैसे सेफली रख सकते हैं, कैसे क्राइसिस ना हो ऐसा, विच इज रिलेटेड विद द एनवायरनमेंट. ओके, so green chemistry, in this there are two words, one is green, another one is chemistry. So chemistry तो सबको पता ही है कि this chemistry plays an important role in our life as well as in society as well as in number of fields that improve the quality of our life. So the role of chemistry is क्या है? It improves the quality of our life. But unfortunately, that is very severe crisis because of that chemistry. Unfortunately, due to this achievement, our health and the global environment are under threat. मतलब ये जो अचीवमेंट है, नो डाउट केमिस्ट्री से इम्प्रूवमेंट हो रही है क्वालिटी में, लाइफ की क्वालिटी में, बट बिकॉज ऑफ दैट इम्प्रूवमेंट थ्रेट्स भी क्रिएट हो रहे हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड. ओके, सो ग्रीन केमिस्ट्री का एक, we can say, one of the principle of green chemistry, that is nothing but A, or we can say aim of green chemistry is to maximize the efficiency and minimize the hazardous effects on human health and environment. What is this? What is the meaning of this sentence? कि efficiency तो maximize करनी है कि products तो तैयार हो जाए वो भी maximum efficiency के साथ, but जो hazardous effect है वो during the chemical reaction या during the formation of products जो hazardous effects होते हैं environment पे, human health पे, उसको minimize भी करना है. ओके, इस प्रोडक्ट को तैयार करना है बट उसके hazardous effects को simultaneously minimize भी करना है. दैट इज द वन ऑफ द important aim or role of green chemistry. So ये जो green chemistry है इसका जो approach है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि maximize the efficiency and minimize the hazardous effects on human health and environment. So ये concept तो किसी ने किसी दिया होगा, right? So this concept was given by a scientist, that is nothing but a Paul T. Anastas. कौन है? Paul T. Anastas, जिसको बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री. ये जो पॉल टी एनास्टस है साइंटिस्ट, इनको फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री भी बोला जाता है. सो इन्होंने डिफाइन कैसे किया है ग्रीन केमिस्ट्री? उन्होंने डिफाइन द ग्रीन केमिस्ट्री. Green chemistry is the use of chemistry for pollution prevention by environmentally conscious design or environmentally conscious design of chemical products and processes that reduce or eliminate the use of generation of hazardous substances. What is the meaning of this definition? क्या है इसका मीनिंग? सो केमिस्ट्री जो है ग्रीन केमिस्ट्री, ये पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसको यूज तो करना है बट कैसे यूज करना है कि जिससे पोल्यूशन का भी प्रिवेंशन हो जाए. ओके, जो एनवायरमेंटली कॉन्शियस डिजाइन रहेगा उसका यूज करके पोल्यूशन को प्रिवेंट करना है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए जो प्रोसेसेस हम लोग यूज करने वाले हैं वो हजारस सब्सटेंसेस को एलिमिनेट करने के लिए और रिड्यूस करने के लिए भी उसका रोल. ओके, ऐसे प्रोसेसेस यहाँ पे यूज करते हैं. दैट इज द डेफिनेशन, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री. So how to define the green chemistry? Green chemistry is the use of chemistry for pollution prevention by environmentally conscious design of chemical products and processes that reduce or eliminate the use of generation of hazardous substances.
Now the next is sustainable development. Sustainable development, these words will use itself with it. Sustainable मतलब long term, मतलब बहुत लंबा चलने वाला. तो लंबा चलने वाला मतलब क्या है? तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, दिस green chemistry plays an important role in sustainable development. That means we can achieve a sustainable development by adopting a 12 principles. Okay. So what is the meaning of sustainable development? कि अभी है but अपने फ्यूचर के जनरेशन के लिए भी वो रहना चाहिए. That is called as the sustainable development. So what is the definition? Sustainable development is the development that meets the need of present. ठीक है, आज की नीड भी कंप्लीट हो रही है बट ऐसा ना हो जाए कि आज की नीड कंप्लीट हो जाए और फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी ना बचे. उसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है कि आज की नीड भी कंप्लीट हो जाए और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो बचा रहना चाहिए. So that is called as the sustainable development. So sustainable development is the development that meets the need of present, okay, without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Okay, future generation के लिए भी वो रहना चाहिए. That is called as the sustainable development. So to reduce the impact of energy crisis, pollution, to save natural resources, and to achieve a sustainable development, we need to implement 12 principles of green chemistry, which is given by A. Paul D. Anastas. What is this? Means ये जो green chemistry का हम लोग स्टडी करने वाले हैं, which is related with the energy crisis. एनर्जी क्राइसिस मतलब क्या है कि अपने एनवायरनमेंट में एनर्जी क्राइसिस तो हो ही रही है क्योंकि एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे फ्यूल्स है या जो भी है जो है वो खत्म होती जा रही है, राइट. सो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, एनर्जी क्राइसिस क्रिएट होगी. पॉल्यूशन तो हो ही रहा है और जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनको सेव करना है. सो to achieve this sustainable development, we have to implement 12 principles of green chemistry, which is given by A. Paul T. Anastas. So what are these? कौन से अपने 12 principles रहते? So before that हम लोग explain करेंगे कि green chemistry क्या है, which reduces the waste materials, hazardous, risk factor रहेगा, energy and cost. Again, why do we need green chemistry? क्या है इसका इम्पोर्टेंस, क्या है इसके ऑब्जेक्टिव्स? तो अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे. केमिस्ट्री इज अनडिनाइबल which is a very important part of our daily lives, no doubt. Chemical developments also bring in new environmental problems and harmful unexpected side effects, which results in the need for greener chemical products. Result क्या है? Which is given. This result can be explained by giving a famous example, that is nothing but a pesticides. और pesticides कौन सा? DDT. Okay, ये जो DDT है हम लोग यूज करते थे पहले, that is nothing but a dichlorodiethyl trichloroethane, which is used as an insecticides. For what purpose? Which gives the effective in controlling the diseases like typhoid and malaria. बट आफ्टर सम टाइम ऐसे सर्च में आया कि ये DDT है जो एनवायरनमेंट में रहता है एंड व्हिच गिव्स द हजार्डस इफेक्ट. सो इसको ऐसे जो हार्मफुल केमिकल से जो अपने एनवायरनमेंट में रहते हैं, जो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स दिखाते हैं, उसको रिमूव करने के लिए, उसके हजार्डस इफेक्ट्स को कम करने के लिए वी नीड टू गो विथ ग्रीन केमिस्ट्री. ओके, what it looks for. Green chemistry looks at the pollution prevention on the molecular scale and is an extremely important area of chemistry due to importance of chemistry in our world today and the implication it can show on our environment. Again, these green chemistry programs support the invention of more environmentally friendly chemical processes which reduce or even eliminate the generation of hazardous substances. ये सब हम लोग explain करने वाले हैं in 12 principles of green chemistry. Again, this green chemistry programs works very closely with the 12 principles of green chemistry. Now,
Which of those? The 12 principles of green chemistry are nothing but a waste. First one is the waste prevention. Second one is atom economy. Third one is less hazardous synthesis. Fourth one is safe chemicals design. Fifth one is begin solvents and auxiliaries, or use a safer solvents and auxiliaries. Sixth one is energy efficiency. Seventh one is renewable feedstock. Eighth one is reduce use of derivatives. Ninth one is catalysis. 10th, design for degradation. 11th, real-time analysis. And lastly, inherently safe chemistry. So firstly, waste prevention or prevention of waste or byproducts. Okay. हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, राइट? ये ग्रॉस स्टेटमेंट को हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, आप लोगों ने सुना होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर. सो व्हाट इज दिस फर्स्ट प्रिंसिपल जो है प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट्स? व्हाट इज दिस? इट इज बेटर टू प्रिवेंट वेस्ट देन टू थ्रेट और क्लीन अप वेस्ट आफ्टर इट इज फॉर्म. इसका मीनिंग क्या है कि पहले से ही प्रिवेंट करो कि जो वेस्ट तैयार होने वाला है वो कम फॉर्म में तैयार हो, और अगर होता भी है तो उसको क्लीन करने की अपने पास प्रोसेस हो. ठीक है? मीन्स इट इज बेटर टू प्रिवेंट वेस्ट देन टू थ्रेट और क्लीन अप वेस्ट आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड. दैट मीन्स पहले से ही अपने पास ऐसी प्रोसेस हो कि वेस्ट तो पहले कम तैयारी होना चाहिए और होना ही नहीं चाहिए, और अगर होता भी है तो उसको क्लीन करने की या उससे थ्रेड्स जो तैयार हो रहे हैं उसको रिमूव करने की अपने पास प्रोसेस. सो ये जो डेवलपमेंट है उसको हम लोग बोलेंगे जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी. ओके, जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी जो है इन टर्म्स ऑफ JWT इन अ केमिकल सिंथेसिस क्या होता है? जो वेस्ट प्रोडक्ट शुड बी जीरो और मिनिमम. इन जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी जो वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होता है विच इज जीरो और मिनिमम. दैट मीन्स अपना एम होना चाहिए कि ऐसे बाय यूजिंग और यूज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ वन सिस्टम एज अ रॉ मटेरियल फॉर अनदर सिस्टम. मीन्स ऐसे कंपाउंड्स तैयार होने चाहिए, ऐसा वेस्ट तैयार होना चाहिए कि फर्स्ट प्रोसेस का वो वेस्ट हो, बट फॉर द सेकंड प्रोसेस विच इज यूज एज अ रॉ मटेरियल. तो हो गया उसका क्लीन अप, हो गया उसका रिक्रिएशन, राइट? तो फर्स्ट प्रोसेस का तो वेस्ट था वो, बट सेकंड प्रोसेस के लिए एज अ रॉ मटेरियल हम लोग उसको यूज करते हैं, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एज द प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट. जो भी बाय प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं उसको हम लोग रिक्रिएट कर रहे हैं, उसको क्लीन अप कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, बॉटम एश ऑफ थर्मल पावर स्टेशन विच इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट और ब्रिक इंडस्ट्री. मतलब जो थर्मल पावर स्टेशन में जो बॉटम ऐश रहती है, जो ऐश तैयार होती है, उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है फॉर सीमेंट एंड ब्रिक इंडस्ट्री. अगेन, effluents coming from the cleansing of machinery parts may be used as a coolant water in thermal power station. Effluents like detergent, like grease, like oil, ये जो effluents है उसको as a coolant यूज किया जाता है in water, coolant water in thermal power station. So what is this? This is nothing but a prevention of waste or byproducts. Okay, जो एज अ बाय प्रोडक्ट अपने फर्स्ट प्रोसेस में तैयार हो रहा है उसको हम लोग एज अ रॉ मटेरियल सेकंड प्रोसेस में यूज कर सकते हैं. जो बाय प्रोडक्ट तैयार हुआ है उसको हम लोग रिक्रिएट और क्लीन अप कर लें, राइट? सेकंड प्रिंसिपल इज एटम इकोनॉमी. एटम इकोनॉमी क्या होता है? सो इट इज रिलेटेड विद द एटम एफिशिएंसी. So which describes the conversion of efficiency of chemical processes in terms of all atoms involved for desired product produce. Okay, so atom economy is a measure of amount of atoms from the starting material that are present in the useful products at the end of chemical process. So for the calculation of atom economy, we have a working formula, and formula is nothing but a molecular weight of desired product upon the molecular weight of all reactants into 100. For that, I am giving you one simple example. So consider करो कि
रिएक्टेंट है विच गिव्स द प्रोडक्ट विद बाय प्रोडक्ट, ठीक है। कंसिडर वन जनरल रिएक्शन, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट विद बाय प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से अपना 100% और प्रोडक्ट अपने को मिल रहा है 45% और बाय प्रोडक्ट मिल रहा है अपने को 55%। तो अगर बाय प्रोडक्ट 55% मिलता है तो इज दिस रिएक्शन इज प्रेफरेबल और अफोर्डेबल? नो। बाय प्रोडक्ट अगर 55% मिलता है तो ये रिएक्शन का रेट तो बहुत कम हो गया, तो ये प्रेफरेबल या अफोर्डेबल रिएक्शन नहीं होगी, तो उसका एटम इकोनॉमी तो बहुत कम होगा, राइट। सो एटम इकोनॉमी कैलकुलेट करने के लिए वी हैव वन फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या रहेगा? एटम इकोनॉमी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। डिजायर्ड प्रोडक्ट मतलब अपना मेन प्रोडक्ट, उसके मॉलिक्यूलर वेट निकालने का, और अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो भी स्पीसीज रहेगी उसके पूरा मॉलिक्यूलर वेट, जो भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे, इनटू 100। सिंपल फॉर्मूला है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एटम इकोनॉमी। ये नाम आया हुआ है आपके थ्योरी एग्जाम, मतलब आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में भी है। सो फॉर एग्जांपल कंसीडर दिस रिएक्शन ब्यूटेन 1 OL to 1 bromobutane. Consider this reaction. This is butane 1 OL, our starting material. With NaBr with H2SO4. ये टोटल क्या हुआ है? This is total is reactant. Okay. तो अपने को रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा, तो ये टोटल रहेगा ब्यूटानॉल ब्यूटेन 1 OL प्लस NaBr प्लस H2SO4 का एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट, वो आएगा नीचे अपने डिनोमिनेटर टर्म पे। और अपना प्रोडक्ट कौन सा है? दिस 1 ब्रोमोब्यूटेन। ओके, 1 bromobutane is the product, और ये जो NaHSO4 plus H2 दिख रहा है that is nothing but a byproduct. ओके, ये क्या है? बायप्रोडक्ट है। नाउ मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करो, इसके 1 bromobutane के मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करो। कैलकुलेट दिस, सो व्हाट इज दिस? इट गिव्स 137 एटॉमिक यूनिट। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मतलब 1 ब्यूटानॉल प्लस NaBr का मॉलिक्यूलर वेट प्लस H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट, sum is 275 atomic unit into 100. So जो आंसर आएगा फाइनल आंसर that is nothing but a 49.81%. Understood? So this is nothing but a percent economy, percentage of atom economy of this reaction. Understood? So this is very very important. So अगर एग्जाम में आता है एक्सप्लेन एटम इकोनॉमी, तो पहले तो आपको उसका प्रिंसिपल लिखना पड़ेगा। प्रिंसिपल क्या है कि एटम इकोनॉमी इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ एटम्स फ्रॉम द स्टार्टिंग मटेरियल दैट आर प्रेजेंट इन द यूजफुल प्रोडक्ट एज द केमिकल एट द एंड ऑफ केमिकल प्रोसेसेस। अगर गुड एटम इकोनॉमी है तो इसका मीनिंग क्या होता है कि most of the atoms of reactant are incorporated in the desired products and only small amount of unwanted products are formed. So that means lesser amount of waste is obtained. Good atomic economy है या good atom economy, इसका मीनिंग क्या होता है कि most of the amount of reactant is converted into a desired product and less amount of byproduct is obtained. फिर उसके बाद आपको एक एग्जांपल देना पड़ेगा। ओके, now the third principle is minimization of hazardous product. Minimization of hazardous products or less hazardous chemical synthesis. Now see, design chemical reactions and synthesis routes should be as safe as possible so that we can avoid the formation of hazardous waste from the chemical processes. ऐसे अपने को hazardous जो मिनिमाइज hazardous waste तो तैयार होंगे नो डाउट मतलब केमिकल रिएक्शन से, बट हम लोग उसको मिनिमाइज कर सकते बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। ऐसे रिएक्शन को डिजाइन करें कि इससे मिनिमाइजेशन हो जाए। So wherever the practicable synthetic methods should be designed to use and generate substances that possess little or no toxicity to people or environment. Environment को भी toxicity कम हो, जो workers है उनको भी toxicity कम मिले, ठीक है। तो ऐसे chemical reactions को डिजाइन करने के, for example DDT, ठीक है।
DDT दैट मीन्स डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरोइथेन, ये जो है विच इज यूज्ड एज ए इंसेक्टिसाइड्स, किसके लिए? टू विच इज इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग द डिसीजेस लाइक टाइफाइड एंड मलेरिया कैरिंग मॉस्किटोज। वो मॉस्किटोज को मारने के लिए एज ए इंसेक्टिसाइड्स यूज किया जाता था DDT को, ठीक है। बट इट वाज रियलाइज्ड दैट DDT इज अ हार्मफुल टू लिविंग थिंग्स, मतलब वो एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल था और अपने लिविंग बीइंग के लिए भी हार्मफुल थे। सो उसको हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया है कि DDT को अब यूज नहीं करना है बिकॉज ऑफ दैट हजार्डस इफेक्ट्स ऑफ DDT। उसको सब्स्टिट्यूट लगाया उसके लिए BHC, दैट इज नथिंग बट बेंजीन हेक्साक्लोराइड। सो नाउअडेज बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज यूज्ड एज ए इंसेक्टिसाइड्स एंड उसका भी वन ऑफ द गैमा आइसोमर, ठीक है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड का गैमा आइसोमर यूज किया जाता है as a insecticides nowadays. Okay, so nowadays benzene hexachloride is used as a insecticides. One of the gamma isomer of BSC is called as gamexin, or that is also called as the linden. अब इसको कैसे तैयार किया जाता है? उसको तैयार किया जाता है by using benzene with chlorine in presence of sunlight. Sunlight के presence में reaction होगी and we get this benzene hexachloride which is called as the BHC. And its gamma derivative, and its gamma isomer, it is also called as the linden or gamexin. ये आ सकता है फिलिंग द ब्लैंक्स में कि व्हाट इज द नेम ऑफ गामा आइसोमर ऑफ BSC ब्लैंक, तो आपको वहां पे लिखना चाहिए, लिखते आना चाहिए कि लिंडेन या गैमेक्सिन जो भी रहेगा ऑप्शन में उसको आपको चूज करना है। ओके, सो व्हाट इज दिस? दिस इज द लेस hazardous or chemical synthesis, or we can say a minimization of hazardous product. Fourth principle is designing safer chemicals. Designing safer chemicals. This principle is quite similar to the previous one. इसके पहले का जो हम लोगों ने देखा था less hazardous chemical synthesis, इससे related ही है designing a safer chemical. In that, to develop a product that are less toxic or which require less toxic raw materials, ऐसे chemical को हम लोग design. This chemical product should be designed to effect their desired function while minimizing their toxicity. Toxicity भी उसकी कम हो जाए। क्यों ऐसा? क्योंकि जो वर्कर्स ये केमिकल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, ये जो हार्मफुल केमिकल्स रहते हैं वो जो केमिकल्स है उनका इफेक्ट ये वर्कर्स पे भी होता है। सो इन केमिकल इंडस्ट्रीज वर्कर्स आर एक्सपोज्ड टू टॉक्सिक एनवायरनमेंट। सो वो प्रिवेंट करने के लिए, in order to prevent the workers from the exposure toxicity, we should think at designing a safer chemical. ठीक है, तो वर्कर्स पे इफेक्ट ना हो जाए, क्योंकि काम करने वाले तो ह्यूमन बीइंग है, उन पे तो इफेक्ट होने वाला है हजार्डस केमिकल्स का, तो ऐसा इफेक्ट ना होने के लिए सेफर केमिकल्स शुड बी डिजाइन. So for example, adipic acid. Adipic acid is widely used in polymer industry. ठीक है, so adipic acid कैसे तैयार किया जाता है? Adipic acid is prepared by using benzene. Benzene is the starting material which is used for the synthesis of adipic acid. But benzene is carcinogenic. Carcinogenic मतलब क्या आता है कि benzene के वेपर्स अगर इनहेल करते हो तो वो कैंसर तैयार कर सकते हैं. That is called as the carcinogenic. And also it is volatile because the boiling point of benzene is very small. So because of that less boiling point, benzene is a volatile in nature. वो volatile है तो वो environment में तो वो रह सकते हैं, right? So volatile organic compound that is called as the VOC and which pollutes a air. So ये harmful chemical है जो benzene है जिसको हम लोग use कर रहे हैं value for the preparation of adipic acid. इसको हम लोग चेंज कर देंगे, मतलब एक प्रोसेस है जो ग्रीन केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी डेवलप बाय ड्रेच एंड फ्रस्ट, ये जो दो साइंटिस्ट थे इन्होंने दूसरा एक स्टार्टिंग मटेरियल बताया है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एडिपिक एसिड, एंड दैट इज नथिंग बट एंजाइमेटिकली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ग्लूकोज. ग्लूकोज की रिएक्शन अगर एंजाइमेटिकली किया जाए तो वी गेट एडिपिक एसिड, मतलब अपने को
बेंजीन यूज करने की जरूरत नहीं है. दैट इज नथिंग बट ए डिजाइनिंग ए सेफर केमिकल्स. ओके, डिजाइनिंग ए सेफर केमिकल्स. Now the next principle is, fifth principle is safer solvent and auxiliaries. Safer solvents and auxiliaries. Auxiliaries मतलब क्या होता है? Auxiliaries are nothing but additives in the formation of additives in the formulation that makes the products better. Okay, safer solvents use करना है और because of that formulation that makes the product better. So choose a safer solvents available for any given steps of reaction. Minimize the total amount of solvent and auxiliary substances used as a make up large percentage of total waste created. सेफर सॉल्वेंट्स को यूज करो. जो क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट रहते हैं, मतलब जो हैलोजेनेटेड सॉल्वेंट रहते हैं, उनका बैड इफेक्ट्स होता है अपने हेल्थ पे भी और अपने एनवायरनमेंट में भी. तो ऐसे सॉल्वेंट्स को चूज करो जो इजीली अवेलेबल भी है और जो हार्मफुल भी नहीं है. फॉर एग्जांपल सुपर क्रिटिकल CO2 which is in fluid state of CO2 where it is held at the above critical temperature and pressure, and because of its liquid like density it is used for dry cleaning over traditional solvents. Again, water is the safe solvent, while a dichloroethane और chloroform और carbon tetrachloride जो भी यहाँ पे आप लोगों को solvents दिख रहे हैं, which are very hazardous, which are used for the chemical synthesis but purposes and different purposes, but they are very hazardous. तो इनके जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं ग्रीन सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, सुपरक्रिटिकल CO2 which can be used in place of volatile halogenated organic solvents. Okay, तो halogenated organic solvents कौन से हैं? डाइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, chloroform, CCl4 like that. So उनके जगह पे we can use water or supercritical CO2 as a green solvents. That is nothing but a use of safer solvents and auxiliaries. Sixth principle is design for energy efficiency. Design for energy efficiency, that is the sixth one. So chemical synthesis should be designed to minimize the use of energy. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये जो ग्रीन केमिस्ट्री है ये रिलेटेड है एनर्जी क्राइसिस के, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस तो होने वाले है, क्योंकि जो फ्यूल्स के जो सोर्सेस है वो खत्म होने को आ रहे हैं, तो एनर्जी क्राइसिस तो होने वाले. तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को या सिंथेसिस को डिजाइन करना है जिसमें कम से कम एनर्जी लगे. ओके, और इट इज बेटर टू कैरी आउट द रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. रूम टेम्परेचर पे अगर रिएक्शन होती है या प्रेशर पे होती है तो वो तो बहुत ही अच्छा है, बट अगर नहीं होता है तो उसको कैसे सब्स्टिट्यूट यूज करने चाहिए, तो हम लोग अभी आगे देखेंगे. सो दिस कैन बी अचीव बाय यूज ऑफ प्रॉपर कैटलिस्ट. मतलब अगर एनर्जी लगती है तो उसको हम लोग प्रॉपर कैटलिस्ट अगर डालते हैं तो उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं. यूज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर ऑर्गेनिक सिंथेसिस और यूज रिन्यूएबल मटेरियल्स. Biocatalyst also works as an ambient condition. At an ambient condition, biocatalyst का भी यूज किया जा सकता है. Biocatalyst can work at an ambient condition. Similarly, in chemical synthesis, refluxing conditions require less energy. अगर रिफ्लक्स करते हो आप लोग रिएक्शन को तो उसके लिए भी लेस एनर्जी लगती है, which improving the technology of heating systems or use micro heatings also. माइक्रोवेव में भी रिएक्शंस कर सकते हैं जो कि एनर्जी कंजम्पशन है उसको कम कर सकते हैं, राइट. सो दीज आर द सम वेज which can be minimize the use of energy efficiency. Now the seventh principle is use of renewable feedstock or use of renewable feedstock. What is this? The perspective of this principle is largely towards petrochemicals. Petrochemicals मतलब क्या है
कि हम लोग उसको डिवाइड करेंगे, वन इज रिन्यूएबल एनर्जी और अनदर वन इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब क्या है कि वो प्लांट बेस्ड रहेगी, ठीक है, which is made of use of chemicals which are made of renewable plant based rather than other, that means non renewable। non renewable मतलब क्या है कि जो फिर से तैयार नहीं हो सकते, राइट। फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल है या कोल है या नेचुरल गैस है या न्यूक्लियर कंपाउंड है, वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में आते हैं। और ये जो अपना सन सोलर एनर्जी है या बायोमास है या विंड एनर्जी है या वो थर्मल एनर्जी है, जो थर्मल एनर्जी और हाइड्रो पावर एनर्जी है, ये सब किसमें आते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में। So over exploitation of non-renewable feedstock will deplete the resources of future generation will be deprived। मतलब क्या है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूज अगर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का करेंगे तो वो तो खत्म होनी ही है ना, कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएंगे, मतलब अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। That is called as the over exploitation of non-renewable energy sources। So moreover, use of these non-renewable resources puts burden over on the environment। So उसके लिए एक सब्स्टिट्यूट है कि हम लोग we can use a renewable resources, for example agriculture or biological products which ensures the sharing of resources by future generation, and this practice generally does not put much burden on environment। The end products and waste are generally biodegradable। मतलब इसको reuse कर सकते हैं, उसका renewable में convert भी हो सकता है और उसका वन एनर्जी से दूसरी एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है। वी कैन यूज नंबर ऑफ टाइम्स, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस ना। द यूज ऑफ दीस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस मतलब which are made of renewable energy rather than the other, that means rather than the non renewable energy sources। Next is eighth principle is reduce derivatives। reduce derivatives और minimization of steps। ये सबसे important है कि during the chemical reaction there are some chemical reactions बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, और जितने ज्यादा स्टेप्स रहेंगे उतने ज्यादा हजार्डस केमिकल्स यूज किए जाएंगे और उतने ज्यादा सॉल्वेंट्स भी यूज किए जाएंगे। तो ये जो डेरिवेटिव्स है या जो स्टेप्स है ना, उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, और रिड्यूस करोगे तो हजार्डस वेस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा, बाय प्रोडक्ट्स भी कम मिलेंगे और अपने की रिएक्शन भी स्मूथली फॉरवर्ड होगी। ये नंबर ऑफ स्टेप्स कहाँ पे बढ़ते हैं इन मेनी रिएक्शन, दी प्रोटेक्शन एंड दी प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप जो रहता है, मतलब कोई एक आधे स्पीसीज का अपने को ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं करना है तो हम लोग पहले उसको प्रोटेक्ट करते हैं और बाद में उसको डी प्रोटेक्ट करते हैं, तो दो स्टेप्स बढ़ गए अपने रिएक्शन में। तो दैट इज कॉल्ड एज द मतलब बिकॉज ऑफ दैट hazardous effects या hazardous byproducts तैयार हो सकते हैं। Now see, this is very important principle। A commonly used technique in the organic synthesis is the use of protecting or blocking group, but that is unnecessary। Unnecessary derivative, for example, installation or removal of use of protecting groups should be minimized or avoided because of such steps requires additional reagents and can generate a waste। For example, here look at this। This is the meta hydroxybenzaldehyde। मेटा हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड का अपने को ऑक्सीडेशन करना है, बट बिफोर दैट हम लोग OH ग्रुप को अपने को ऑक्सीडाइज नहीं करना है, तो OH ग्रुप को एज इट इज रहना है अपने को, पहले उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर लें। प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, बाय यूजिंग C6H5CH2Cl बेंजाइल क्लोराइड का यूज करके we get this next species। अब बचा क्या, CHO is undergo oxidation, तो ओनली CHO का ऑक्सीडेशन होगा एंड व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू COOH, बाकी जो इथर तैयार हुआ है वो एज इट इज रहेगा। अब पहले प्रोटेक्ट किया, बाद में उसको डी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, डी प्रोटेक्शन ऑफ OH ग्रुप। तो जो यहाँ पे ईथर तैयार हुआ है हम लोग उसको OH को फिर से वहां पे कन्वर्ट कर देंगे, तो अपने को मिलेगा मेटा हाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड। तो पहले हम लोगों ने OH को प्रोटेक्ट किया, कन्वर्ट किया उसको ईथर में, बाद में उसको डी प्रोटेक्ट किया, तो दो स्टेप्स यहाँ पे बढ़ चुकी है, राइट। So such steps would require additional reagent and which can generate waste। atomic economy भी less हो जाएगी because of that, and which can require time and energy more, right। So because to avoid that things
reduce the steps or minimize the steps required for completion of reaction. Okay, so this is the eighth principle of green chemistry. Now the ninth principle of green chemistry is catalysis. Catalysis is very important. कैटालिस्ट का रोल तो पता है क्योंकि चलता है रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, कैटालिस्ट का रोल क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन को वो अल्टर करते हैं. द यूज ऑफ कैटालिस्ट इन द केमिकल रिएक्शन स्पीड अप इट्स रोल एंड दिस कैटालिस्ट हेल्प्स टू इंक्रीज द सिलेक्टिविटी, मिनिमाइज द वेस्ट एंड रिड्यूस द रिएक्शन टाइम्स एंड एनर्जी डिमांड. कैटालिस्ट की हेल्प से हम लोग टाइम को कम कर सकते हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट को भी कम कर सकते हैं और सिलेक्टिविटी और वेस्ट का मिनिमाइजेशन भी कर सकते हैं. सो द यूज ऑफ कैटलिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. फॉर एग्जांपल, टोलिन कैन बी एक्सप्लोसिवली कन्वर्टेड इनटू पैरासाइलिन. ऑर्थोसाइलिन और मेटासाइलिन को अपने को तैयार नहीं करना है, तो इसीलिए वो सिलेक्टिव रिएक्शन होगी बाय यूजिंग ए शेप सिलेक्टिव जियोलाइट कैटलिस्ट. जियोलाइट कैटलिस्ट यूज करोगे तो अपने को ये जो बेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा ऑर्थोसाइलिन मेटासाइलिन ये तैयार नहीं होंगे. वी गेट ओनली पैरासाइलिन. So in number of organic reactions, there are different catalysts are used. For example, Haber process. Haber process is used for the preparation of ammonia. And in this reaction, we can use Fe as a catalyst with molybdenum as a promoter. That's the last year आप लोगों ने पढ़ा है. Again, hydrogenation of oil. Hydrogenation of oil में हम लोग catalyst को use करते हैं nickel, platinum, palladium. Again, manufacturing of ester sulfur by contact process है. So in that we have to use vanadium pentoxide or platinum as a catalyst. Again, Fischer-Tropsch process है, which is used for the synthesis of gasoline. In that rhodium, Fe, Cr or nickel, and that is chromium or nickel used as a catalyst. Okay, so by using the catalyst क्या होता है? chemical reaction speed up हो जाती है. Again, जो waste है उसका minimization होता है and selectivity increase होती है and time and energy demand भी कम हो जाता है. So कैटलिस्ट का यूज होना चाहिए. Now the 10th principle of green chemistry is designing of degradable product. This is also very important. Design a degradable product. Design chemical and degrade and can be discarded easily. ऐसे chemical की प्रोसेस को डिजाइन करना है कि जो इजीली डिस्कार्ड हो जाए, राइट? सो डिजाइन केमिकल्स दैट डिग्रेड एंड कैन बी डिस्कार्डेड इजीली, which ensure that both chemicals and their degradation products are not toxic and bioaccumulative or environmentally persistent. For example, DDT क्या था? एनवायरमेंट में रहता था और बिकॉज ऑफ दैट इट्स प्रेजेंस ह्यूमन बींग्स पे भी इफेक्ट होता है और प्लांट पे भी इफेक्ट होता था. सो इसके पीछे का एम क्या है? द एम behind this principle is that waste products should be degraded automatically and clean the environment. Thus, biodegradable polymers and pesticides are always preferred. अब आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग पॉलिथीन जो यूज करते हैं या जो भी कंपाउंड प्लास्टिक्स यूज करते हो उस पे ऐसे एरोज रहते हैं. ये 3 एरोज, 3 आर्स जिसको हम लोग बोलते हैं. 3 आर्स का मीनिंग होता है, ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं ना 3 आर्स, ये 3 आर्स का मीनिंग होता है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. और रिड्यूस भी होते हैं, रीयूज भी होते हैं, रिसाइकल भी किए जाते हैं. इसीलिए ऐसे 3 एरोज रहते हैं जो एक दूसरे के ऐसे गोल राउंड शेप में रहते हैं. So ये किसके लिए रहते हैं? To make separation easier for consumer and international plastic recycle mark is printed on larger type and use this chart to sort plastic in daily life. अब ये जो चार्ट दिख रहा है आप लोगों को, इस पे कुछ प्लास्टिक पे ये इसके बीच में एक नंबर दिया रहेगा, 1 नंबर दिया रहेगा, 2 नंबर दिया रहेगा, 3 नंबर दिया रहेगा, 4, 5, 6, 7. तो वो डिसाइड करते हैं कि वो कितने इसमें रीयूज, रिसाइकल और रिड्यूस हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर वहां पे 1 है, नंबर 1 है, तो वो रहेगा अपना पीईटी. पीईटी मतलब क्या? पॉलीइथिलीन टेरिथैलेट, समझ में, जिसका यूज होता है माइक्रोवेबल फूड ट्रेस. माइक्रोवेव में जो फूड ट्रेस होते हैं
और सलाद ड्रेसिंग, सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स एंड बियर बॉटल्स के बॉटल्स जो तैयार होती है वो पीईटी से तैयार होता है, जिसका 1 नंबर दिया रहेगा 3 आवर्स के बीच में। अगर वहाँ पे 2 नंबर है तो एसडीपी मतलब क्या, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन which is used through household cleaner and shampoo bottles, which transmit known chemicals into food, is recycled to make detergent, bottle fencing, floor tiles and paints. थर्ड अगर नंबर है, 3 नंबर अगर है तो वो है वी और पीवीसी, विनिल पॉलीविनिल क्लोराइड। ये तो आपको सबको पता है कि पॉलीविनिल क्लोराइड पीवीसी इज कुकिंग ऑयल बॉटल से, क्लियर फूड पैकेजिंग से, माउथ वॉश बॉटल से, तो उसके लिए वहां पे यूज होता है। अगर फोर्थ नंबर है दैट इज नथिंग बट एलडीपीई, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, विच इज यूज्ड इन ब्रेड एंड शॉपिंग बैग्स। ब्रेड और शॉपिंग बैग्स जो रहते हैं उसके तैयार होने के लिए ये यूज किया जाता है, कारपेट है, क्लॉथिंग, फर्नीचर से। नेक्स्ट वन इज 5, नंबर 5 अगर है तो वो है पॉलीप्रोपिलीन। केचप बॉटल्स जो रहते हैं अपने, मेडिसिन एंड सिरप बॉटल्स, ड्रिंकिंग स्ट्रॉज है, वो किससे तैयार होते हैं, पॉलीप्रोपिलीन से। अगर नंबर 6 है, 6 मतलब क्या है, पॉलीस्टायरीन। एंड पॉलीस्टायरीन जो है थोड़ा कार्सिनोजेनिक रहता है। डिस्पोजेबल कप्स एंड प्लेट्स, कार्टून्स, टेक आउट कंटेनर्स। ओके, तो ये गरम, हम लोग बोलते हैं ना कि गरम गरम चाय नहीं पीना चाहिए डिस्पोजल में, बिकॉज ऑफ कार्सिनोजेनिक रहते हैं पॉलीस्टाइरीन। 7th अगर है तो अदर मिसलेनियस, 3 and 5 gallons water jugs, nylon, some food containers. ओके, सो ये these are the some numbers। ये नंबर के बेसिस पे इसकी डिग्रेडेशन क्वालिटी डिसाइड की जाती है। सो दैट इज नथिंग बट ए डिजाइन ऑफ डिग्रेडेशन, मतलब ऐसे डिजाइन करो कि वो डिग्रेड भी हो जाए और डिस्कार्ड भी हो जाए इजीली। For 11th principle is real time analysis for pollution prevention. रियल टाइम एनालिसिस फॉर पोल्यूशन प्रिवेंशन का मीनिंग क्या होता है कि हम लोग अगर रिएक्शन लगा रहे और रिएक्शन का कन्वर्जन हो रहा है प्रोडक्ट में इन 60 मिनट, तो ऐसा तो नहीं है ना कि रिएक्शन लगा दोगे और 60 मिनट बाद जाके देखोगे कि हाँ हाँ कंप्लीट हो गया नहीं हुआ, प्रोडक्ट तैयार हुआ नहीं होगा। नहीं, उसको हर एक मिनट में उसको मॉनिटर किया करना चाहिए रिएक्शन को, क्योंकि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन नंबर ऑफ साइड प्रोडक्ट्स तैयार होने के चांसेस रहते हैं। दैट इज नथिंग बट ए रियल टाइम एनालिसिस फॉर पोल्यूशन प्रिवेंशन। मतलब एग्जैक्ट टाइमिंग नोट डाउन करो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए। तो एनालिटिकल मेथड नीड्स टू बी फर्दर developed to allow for real-time in-process monitoring and control prior to the formation of hazardous substances. In analytical methodologies, this should be developed or modified so that continuous monitoring of the manufacturing and processes units is possible. And this is very important for the chemical industries and nuclear reactors. केमिकल इंडस्ट्रीज में तो मॉनिटर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और न्यूक्लियर रिएक्टर में तो वही है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियर कंपाउंड्स रेडियो एक्टिव रहते हैं और वो हर एक टाइम पे इमिट्स करते रहते हैं रेडिएशन, तो मॉनिटरिंग तो होना जरूरी है। सो रियल टाइम एनालिसिस which is very beneficial for pollution prevention. 12th principle is safer chemicals for accident prevention. Safer chemical for accident prevention. Safer chemical मतलब क्या है कि analytical substances and form the substance used in chemical process should be chosen to minimize the potential for chemical accident, including releases, explosion and fires. For example, कि अगर कोई process हम लोग कोई एक्सप्लोजन की प्रेजेंस में कर रहे हैं या एक्सप्लोजन अल्कोहल के प्रेजेंस में कर रहे हैं या रेडियोएक्टिव कंपाउंड्स का यूज करके कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो केमिकल प्रोसेस है वो सेफर और रिस्क को मिनिमाइज करने वाली है या नहीं है, क्योंकि सेफर केमिस्ट्री फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन मतलब क्या है कि अल्कोहल का अगर हम लोग यूज कर रहे हैं और अल्कोहल का यूज करके अगर उसको आप हीट करते हो, इट कैचेस फायर, और जैसे वो कैच फायर करेगी तो एक्सीडेंट तो होगा ही। रेडियो एक्टिव मटेरियल अगर यूज कर रहे हैं तो वहां पे एक्सप्लोजन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, फायर और इग्निशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सो व्हाट इज दिस इज, ये सब किस में आता है, सेफर केमिस्ट्री में। So the substance to be used in chemical reaction should be selected in such a way that they can minimize the occurrence of chemical accidents like explosion or fire or ignition. For example, if the chemical process work with the gaseous state, then the possibility of accidents including explosion is relatively higher compared to the system working with non-volatile liquid or solid substances.
गैसियस स्टेट में अपने एलिमेंट्स बहुत दूर दूर रहते हैं, तो इजीली वहां पे एक्सप्लोजन हो सकता है कंपेरेटिवली अगर नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स और सब्सटेंसेस अगर हम लोग यूज करते हैं तो. सो these are the all 12 principles of green chemistry. Okay, now the lastly, what is the role of green chemistry? ग्रीन केमिस्ट्री का रोल क्या है, व्हाट आर द एप्लीकेशन हो सकती है, व्हाट इज द यूज ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री कि हम लोग अपने लाइफ में या अपने एनवायरनमेंट में या अपने सोसाइटी में उसको कैसे लाया जाए, कैसे यूज किया जाए. So the green chemistry approach is to recognize that the earth does have a natural capacity for dealing much of the waste and pollution that society generates, and it is only when that capacity exceeded that we become unsustainable. Again, this role of green chemistry is to promote innovative chemical technologies that reduce or eliminate the use of generation of hazardous substances in a design, manufacture and use of chemical products. कैसे chemical reactions को डिजाइन करो जिसमें जो जनरेशन hazardous substances से या use of generation of hazardous substances से उसको minimize किया जाए, उसको eliminate किया जाए. Again, third one is it incorporates pollution prevention practices in the manufacture of chemical and promotes pollution prevention and industry ecology. Fourth one is it is the new way of looking at chemical and manufacturing process to minimize any negative environmental effects. Again, it also helps to helps to protect the presence of ozone layer in stratosphere, which is essential for the survival of life on Earth and useful to control the greenhouse effect due to global warming. This is very important application or role of green chemistry. कि अब नाउ अडेज बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और ओजोन लेयर डिप्लेशन भी हो रहा है. तो अगर ग्रीन केमिस्ट्री अप्रोच रखते हो तो ये सब प्रिवेंट किया जा सकता है. ओके, सो दीज आर द सम role of green chemistry. These are the some applications of green chemistry. Okay, students, now यहाँ पे अपना green chemistry खत्म होता है and in next lecture we will see the introduction to nano chemistry. Okay, student, bye bye.